हैं। आई होप आपको हमारे सारे के सारे सेशंस अच्छे लग रहे हों, हेल्पफुल लग रहे हों और रिसोर्सफुल लग रहे हो। सो थैंक्स, सॉरी, ओके, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लास्ट सेशन में बहुत सारे ग्लिचेस आने के बाद भी आप लोगों ने सपोर्ट किया, किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं करके फीडबैक में सिर्फ सपोर्टिव कमेंट्स करे थे, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। और ये हमारा 4th सेशन है एंड आज का टॉपिक जैसा आप सबको पता होगा सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिटिक अप्रोच है। So let me tell me first about myself. Myself, Ekta Dubey. I'm a special educator as well as I cleared my CTET in 2018 and 19, and I did my graduation psychology in clinical psychology. And yeah, me and Anjali ma'am have a YouTube channel, Learning Orbit. We hope you will go through that. So now Anjali ma'am will tell you more about today's session. Ma'am, over to you. Yes. Hello, good afternoon, everyone. I am Anjali Jain. I am a special educator. I did my graduation in BA Psychology, Counseling Psychology basically, and cleared CTET in 2018 and 19 both. So, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में अपना अनाउंस किया था कि आप ये प्लेटफॉर्म हम सबका है, यहाँ पर कोई भी अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है, अपने जो भी, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे सब चीजें हम एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे। ऐसे ही आज के हमारे जो स्पीकर हैं, रिसोर्स पर्सन है मिस पल्लवी आनंद। शी इज अ ग्रेट teacher, brilliant. She is a MA psychology plus PhD scholar, research scholar, and cleared NET also, NET exam. And now today she will start her topic, the psychoanalytic approach. Pallavi ma'am, you can start your topic, and over to you, ma'am. Ma'am, we are. Yes. Are you there? Okay. Hello. Hope you will enjoy her session and yeah. Sorry, Yes, I cannot hear you. The voice quality is not good. Can you hear me? Yes, ma'am, we can hear you, ma'am. Try without the earphones. Actually, sometimes earphones will. Sorry, Ekta, I cannot hear you. Can you send me the text? I am just not able to hear you. Or shall I start the session? Yes, ma'am, you can. You can. Wait. Am I audible to everyone or not? Yes, ma'am, you are audible. Audible. You are audible. I think there is some problem. I cannot hear you clearly. The voice is very low. Try to take session without earphones. It will be more better. Yeah. Sometimes earphones will. Okay, I'll do it later on. But shall I start now? Yes. And if there is any problem, I'll do it. Okay. So, hello everyone. I am Pallavi Anand. First of all, thank you Learning Orbit and Ekta and Anjali for giving me the opportunity to present a lecture. And as they have already tell you about me that I am a research scholar, I am pursuing my PhD from Jammu University. So without wasting much time, I think we should start the lecture. That is Psychoanalytic Theory by Sigmund Freud. Okay, so I request everyone to please turn off their videos as the connectivity issue is there. Okay, so now I am sharing my screen. I am also turning off my video. Okay. Anjali, you have disabled my screen sharing. Please enable. Okay, we wait, ma'am. Yes. I'm not able to share the screen. Ma'am, just wait for a minute. We will do it. Yeah, ma'am. Now you can share. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. So this is our psychoanalytic theory. Can you see my screen? Yes, ma'am. Can you see the PPT?
Okay, Yes, so ma'am. I'm just starting. Yes, Psychoanalytic theory was given by Sigmund Freud. He was the person who was behind the psychoanalytic movement, basically psychodynamic movement. Later on, many psychologists joined the movement, but he was the first one to start this movement. Okay, so first of all, before heading towards psychoanalytic theory, let me first explain you what is personality. Personality is basically an individual's unique and relatively consistent patterns of thinking, feeling, and behaving. So, as we know, all individuals are different. They have different ways of thinking. They have different thought processes. So, this is what makes our personality and makes us different from others. So, since every individual is different in its own way, जिस तरह से मैं सोचती हूँ उस तरह से आप नहीं सोचते होगे, जिन सिचुएशंस में मैं जिस तरह से रिएक्ट करती हूँ अगर आप उन सिचुएशंस में होंगे तो आप वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे. सो दिस इज व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम यू. Okay, so this is the personality. I have a different personality, you have a different personality, और यही personality हमारे behavior को determine करती है. हम क्या सोचते हैं, कैसे act करते हैं, यही personality determine करती है. Okay, so then there is Sigmund Freud. Sigmund Freud was the founder of psychodynamic movement in psychology. He started the psychodynamic movement. He is also known as the father of psychoanalysis, and he proposed the first complete theory of personality. So what happened कि फ्रॉइड से पहले भी बहुत सारे लोग थे जो पर्सनालिटी पे काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसने एक पर्सनालिटी की फुल फ्लेज्ड थ्योरी दी हो. So Freud was the first person who gave us a full-fledged theory of personality. Even though बाद में उस theory में बहुत modifications हुई, बहुत लोगों ने उसको criticize किया, बहुत लोगों ने उसको support किया, but Freud की theory was the base of psychoanalysis and was the base of personality in psychology. Okay, so let's move to next slide. Then psychoanalytic approach. The underlying assumption of psychoanalytic approach was we have to focus on our unconscious thoughts, feelings, and memories. And these unconscious processes play an important role in the development of personality. So, जो psychoanalytic approach थी वो बात करती थी unconscious mind की. ठीक है, unconscious mind होता है वो हमारे दिमाग का वो हिस्सा, वो माइंड जिसके बारे में हम जानते नहीं है. ठीक है, जो अनकॉन्शियस है, जो हिडन है. सो फ्रॉइड कहते थे कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी अनकॉन्शियस माइंड डिटरमाइन करता है. हम लोग अपनी पर्सनालिटी फॉर्मेशन में कुछ नहीं कर सकते हैं. हमारा अपनी पर्सनालिटी पे, अपने बिहेवियर पे कोई कंट्रोल नहीं है. जो भी करता है वो ये अनकॉन्शियस माइंड करता है. ओके, सो फ्रॉइड सेड कि इन टर्म्स ऑफ फ्री विल मतलब कि हम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से कितना चला सकते हैं. तो उन टर्म्स में फ्रॉइड बिलीव्ड दैट वी कैन नॉट कंट्रोल अवर बिहेवियर. हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. वो ये मानते थे कि हमारा जितना भी बिहेवियर है, जो भी हम जिस भी सिचुएशन में बिहेव करते हैं, it is predetermined by the motivations that lie outside our awareness in the consciousness. For example, I am behaving in a particular way. The situation will not decide how I will behave according to Freud. According to Freud, there are some predetermined motivations. मेरे दिमाग को already पता है कि उसने इस situation में क्या करना है और वो उसकी awareness से बाहर है. दिमाग ने सोचा नहीं है, कॉन्शियसली नहीं सोचा है कि आई हैव टू बिहेव इन दिस वे, बट अनकॉन्शियस प्रोसेसेस ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है हाउ आई विल बिहेव इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. ओके, आई होप इट इज क्लियर. इफ एनीवन हैज एनी इशू किसी भी चीज में तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. आई विल सी इट इन द एंड एंड वील डिस्कस द क्वेरीज. ओके, सो फ्रॉइड ने सबसे पहले बात की थी इंस्टिंक्ट्स के बारे में. फ्रॉइड सेड इंस्टिंक्ट्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी. फ्रॉइड ने कहा कि जो भी हम बिहेव करते हैं उसके पीछे एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है और वो फोर्स इंस्टिंक्ट है. उन्होंने उस फोर्स को नाम दिया इंस्टिंक्ट.
और वही जो फोर्स है वो डिटरमाइन करता है हमारे बिहेवियर को, ड्राइव करता है, ड्राइव अस टू बिहेव, इट ड्राइव्स अस टू बिहेव, इंस्टिंक्ट्स ड्राइव अस टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. एंड फ्रॉइड सेड इंस्टिंक्ट इज नॉट द बॉडीली स्टेट. इंस्टिंक्ट कोई बॉडीली स्टेट नहीं है, रादर क्या है कि एक बॉडीली नीड थी, उसको एक मेंटल स्टेट में ट्रांसफॉर्म किया गया है, और जब मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो वो एक विश बन के उभरी है, और वो जो विश है वो इंस्टिंक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडीली नीड है कि मेरा ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, आई नीड फूड, ये एक बॉडीली नीड है. सो इस बॉडीली नीड को हमारे माइंड ने एक मेंटल स्टेट बना दिया, हंगर की स्टेट बना दिया, एंड नाउ आई नीड टू फुलफिल दिस विश. सो being hungry or being thirsty is a mental state which is a instinct, और जो हमारे behavior को drive करता है. Since I am feeling hungry, I'll get up and drink some water. Okay, so these are the instincts. Next, based on the instincts, Freud developed a drive theory. I hope मैं ज़्यादा तेज नहीं जा रही हूँ. Anjali, please, Anjali or Ekta, can you please confirm ki the speed that I am going is fine? Yes, ma'am. You're going good. Thank you so much. So, based on the instincts, Freud ने एक drive theory develop की. इसमें Freud ने यही कहा कि when the body is in a state of need, the person experiences a feeling of tension or pressure. और जो एम है इस इंस्टिंक्ट का वो ये है कि उस नीड को सेटिस्फाई करना है और टेंशन को रिड्यूस करना है. सो ड्राइव थियरी इज बेसिकली अ प्रोसेस. स्टेट ऑफ नीड, वी आर एक्सपीरियंसिंग टेंशन और प्रेशर, एंड द इंस्टिंक्ट एम्स टू सेटिस्फाई द नीड, एंड देयरफॉर द टेंशन हैज टू बी रिड्यूस्ड. ओके, सो फ्रॉइड की थियरी जो है ये बेसिकली एक होम्योस्टैटिक अप्रोच हम इसको कह सकते हैं. होम्योस्टैटिक अप्रोच वो होती है जो हमारी बॉडी को बैलेंस में रखना चाहती है, जिसका एम होता है बॉडी का एक इक्विलिब्रियम, फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना. सो फ्रॉइड की जो थियरी है ये होम्योस्टैटिक अप्रोच भी हम इसको कह सकते हैं. सो फ्रॉइड की जो ड्राइव थियरी थी उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है. जो भी आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो मेनी टाइम्स क्वेश्चन इज देयर जहां पर ये पूछा जाता है द सीक्वेंस ऑफ दिस सोर्स, इम्पेटस, ऑब्जेक्ट, एम. सो करेक्ट सीक्वेंस आपको मार्क करना होता है. ओके, सो here the sequence is, first of all एक source होगा. source will be what? source will be एक body का कोई एक part जहाँ पे कुछ deficit है, जहाँ पर कुछ कमी है, कोई deficiency है, तो वो source जो है वो होगा body का एक part. for example blood sugar drop हो गया और एक sense of hunger emerge हो गई, तो source क्या है? blood sugar का drop होना और hunger का emerge होना. Then there is impetus. impetus होता है कि कितनी इंटेंस है हमारी जो भी नीड है, जो डेफिशिएंसी है बॉडी की, वो कितनी इंटेंस है और कितनी इंटेंसिटी तक वो ग्रो करती है, और फिर वो हमारे कॉन्शियसनेस में आके हमें फिजिकल डिस्कम्फर्ट देती है. फिजिकल डिस्कम्फर्ट होने की वजह से हमें एंजाइटी होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फीलिंग हंग्री, ओके मैंने खाना नहीं खाया सुबह से, मेरी बॉडी को थोड़ी सी नीड लग रही है, तो सोर्स क्या है? वो बॉडी की खाने की नीड. अभी इम्पेटस क्या है कि इतनी इंटेंस है वो नीड कि मेरी बॉडी जो है वो डिसकंफर्टेबल होने लगे और मुझे ऐसा लगने लगे कि मुझे चक्कर आ रहा है, नाउ आई नीड फूड. ओके, सो दिस इज इम्पेटस. देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज कि वो चीज जिससे हम अपने डिस्कम्फर्ट या एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे हम अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे अपनी बॉडीली नीड को सेटिस्फाई करके. तो अगर मुझे भूख लगी है तो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट? द फूड विल बी द ऑब्जेक्ट. एनी एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट, खाना ले लिया या कुछ और ले लिया जिससे मेरी जो हंगर की नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए, तो वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट. देन देयर कम्स द एम. सो एम क्या था? If the environmental object successfully satisfy the bodily deficit, satisfaction occur, और satisfaction attain करना is the aim.
किसी भी इंसान का जो इंस्टिंक्ट्स जब जागते हैं, इंस्टिंक्ट्स वर्क करते हैं, तो उनका एम क्या होता है कि हमारी जो भी बॉडीली डेफिसिट है उसको हमने रिड्यूस करके सेटिस्फेक्शन अटेन करनी है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉइड्स ड्राइव थ्योरी. देन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फ्रॉइड ने बात की इंस्टिंक्ट्स की. तो फ्रॉइड ने दो तरह के इंस्टिंक्ट की बात की है, एक लाइफ इंस्टिंक्ट की और एक डेथ इंस्टिंक्ट की. फ्रॉइड ने बोला लाइफ इंस्टिंक्ट्स कौन से हैं, जैसे सेक्सुअल एनर्जी, नर्चरेंस, एफिलिएशन, जिससे हम ग्रो करते हैं, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल एफिलिएशन इज लव, अफेक्शन, इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स. सो इससे क्या होगा, इससे एक इंडिविजुअल को सपोर्ट मिलता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, मेंटल और साइकोलॉजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग उसकी ठीक रहती है. सो दीज आर द इंस्टिंक्ट्स फॉर लाइफ दैट आर कॉल्ड एरोस. एंड देन इंस्टिंक्ट्स फॉर डेथ. डेथ इंस्टिंक्ट्स की फ्रॉइड ने बात की, जिसमें आते हैं आपकी एग्रेशन टुवर्ड्स सेल्फ एंड एग्रेशन टुवर्ड्स अदर्स. वो इंस्टिंक्ट्स, सी फ्रॉइड वाज द पर्सन जिसने पर्सनालिटी में अच्छी चीजों के बजाय बुरी चीजों की ज्यादा बात की है. ओके, सो फ्रॉइड की थियरी में आपको एग्रेशन, एंगर, सेल्फ क्रिटिसिज्म, डिप्रेशन, ये सारी चीजें, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी फ्रॉइड की थियरी में. तो फ्रॉइड ने इंस्टिंक्ट्स की, जो डेथ इंस्टिंक्ट्स की बात की, उनमें एग्रेशन था टुवर्ड्स सेल्फ. जब हम सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जब हम सैडनेस की तरफ जाते हैं. एंड देन ही टॉक्ड अबाउट एग्रेशन टुवर्ड्स अदर्स. जब हम दूसरों के लिए एग्रेशन शो करते हैं, लाइक एंगर, प्रेजुडाइज, बायसनेस, तो ये क्या है, ये दूसरों के लिए हमारा एग्रेशन है. सो Freud talked about these two instincts. First is instinct for life and second is instinct for death. Moving forward, then Freud talked about levels of personality. तो Freud ने 3 levels of personality की बात की है. सबसे पहले तो फ्रॉइड ने जो हमारा ह्यूमन माइंड है उसको कंपेयर किया है एक आइसबर्ग के साथ. आई होप यू ऑल नो अबाउट आइसबर्ग, जिससे टाइटैनिक टकराई थी और बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ओशंस में, सीज में, आइसबर्ग की वजह से. आइसबर्ग बेसिकली क्या होता है कि सरफेस के ऊपर उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखता है और जो भी सेलर्स होते हैं उनको लगता है कि ये सिर्फ इतना सा बर्फ का टुकड़ा है, बट इनसाइड बिनेथ द सरफेस एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो सेलर्स को नहीं दिखता है और जिससे टकरा कर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. सो फ्रॉइड टॉक्ड अबाउट दिस ओनली. फ्रॉइड ने कहा कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, माइंड से पर्सनालिटी बनी है. सो ह्यूमन माइंड जो है वो एक आइसबर्ग की तरह है, जिसमें जो सामने दिखता है, जिसके लिए हम कॉन्शियसली अवेयर हैं, वो सिर्फ 10% है, अ वेरी लिटिल अमाउंट, जिसको हम जानते हैं, देख अवेयरनेस में है जो हमारे. और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अनकॉन्शियस में है, जो एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी को ड्राइव करता है. वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन हम उसके बारे में अवेयर नहीं है. So let's start with levels of personality. First, Freud compared mind with iceberg, and then Freud said only 10% mind is the conscious mind. Okay, सिर्फ 10% हिस्सा है जो हमारी awareness में है. So what does that mean? Consciousness का मतलब है वो सारी sensations, experiences, हमारे behaviors जिनके बारे में हम अभी aware हैं, उनको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं. वो हमारी कॉन्शियसनेस में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम शोइंग यू दिस स्लाइड. आप लोग इस स्लाइड को देख रहे हो, यू कैन रीड कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक पिक्चर बनी है, यहाँ पर भी कुछ लिखा है. यू कैन सी द कलर ऑफ द स्लाइड, यू कैन सी द कलर ऑफ द फिगर. सो जो आप अभी देख रहे हो, जो आपकी अवेयरनेस में है, वो आपका कॉन्शियस माइंड है. बैक ऑफ द माइंड आपके बहुत कुछ चल रहा होगा जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता है, लेकिन ये जो चीज है, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरी आवाज का टेक्सचर सुन रहे हो, आप ये अटेंड कर रहे हो, सो सिर्फ इतना ही आपके कॉन्शियसनेस में है. ओके, सो ही कंपेयर्ड कॉन्शियसनेस विद द टिप ऑफ दिस आइसबर्ग, जो बहुत छोटा है. अभी आपके कॉन्शियसनेस में सिर्फ इतनी सी ही चीज है, सिर्फ ये स्लाइड ही है. नेक्स्ट, फ्रॉइड टॉक्ड अबाउट
Freud said conscious mind is similar to our short term memory. शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे है वो, ये स्लाइड का कलर आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये फिगर देख रहे हो, आफ्टर सम टाइम जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि स्लाइड्स कौन से कलर की थी या फिगर कौन से कलर की थी या कितनी फिगर्स थी, तो आपको शायद वो भूल गया होगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज होती है वो थोड़े टाइम के लिए रहती है, उसके बाद वो निकल जाती है। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह ही है, जिसमें थोड़े टाइम के लिए कोई चीज रहती है, जैसे जैसे जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में थोड़े टाइम के लिए रहेगा और फिर वो निकल जाएगा, फिर हमें उसके बारे में याद नहीं रहेगा। Then Freud talked about pre-conscious mind. Freud said कि consciousness और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में जो होता है वो होता है आपका प्री कॉन्शियस माइंड। सो प्री कॉन्शियस माइंड बेसिकली क्या है, वो चीजें, वो मेमोरीज, वो सेंसेशंस जिनके बारे में अभी आप अवेयर नहीं हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो आप उन चीजों को अपनी अवेयरनेस में ला सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली फ्रॉइड सेड the things that are in our pre-conscious mind, we can bring it into our consciousness with a little effort. थोड़ा सा effort करके हम जो pre-conscious की चीज है उसको अपने कॉन्शियस में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी इस लेक्चर जो चल रहा है आपका ये कॉन्शियसनेस में चल रहा है, लेकिन अगर ये लेक्चर सुनते सुनते आपको याद आ रहा है कि अच्छा कल रात को आपने ये वाली मूवी देखी थी और कल रात को आपने डिनर में ये खाया था, सो दैट इज इन योर प्री कॉन्शियस, जिसको आप अपनी कॉन्शियसनेस में ले आए हो, ठीक है। So how was the movie, how was the dinner that you ate last night or 2 days before? तो वो अभी कॉन्शियसनेस में नहीं था, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी और आप सोचोगे तो आप उस चीज को याद करके अपनी कॉन्शियसनेस में ला सकते हो, ठीक है। जब भी नीड अराइज होती है तो जो प्री कॉन्शियस का मटेरियल है उसको हम कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं। सो प्री कॉन्शियस इज बेसिकली रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे बहुत सारी चीजें हैं, जिन सब चीजों की जरूरत अभी प्रेजेंट में हमें नहीं है, लेकिन जब भी जरूरत होगी तो हम उसको अपने प्री कॉन्शियस से उठा के कॉन्शियस में ला सकते हैं, और हमारा माइंड जो है वो बैक एंड फोर्थ शिफ्ट होता है प्री कॉन्शियस से कॉन्शियस में, और वाइस वर्सा कॉन्शियस से प्री कॉन्शियस में। द नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस माइंड। सो the most important thing in Freud's theory was unconscious mind, जिसके ऊपर फ्रॉइड ने सबसे ज्यादा फोकस किया था। फ्रॉइड सेड कि जो आइसबर्ग में जैसे ये बड़ा वाला हिस्सा होता है जो नहीं दिखता है ऊपर से, वो जो लार्जर इनविजिबल पोर्शन है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो बिलो द सरफेस रहता है, जो हिडन होता है। और यही जो हिडन पार्ट है ये फोकस था फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी का। So Freud said कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, it contains all the major driving powers behind all behaviors. For example, I behaved in a certain way in a situation. तो उस टाइम पे जो वो बिहेवियर है वो कहाँ से निकला है, वो अनकॉन्शियस से निकला है, अनकॉन्शियस ने वो बिहेवियर को डिटरमाइन किया है। ओके, सो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये अनकॉन्शियस जो है ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है या हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जो हिडन रहता है, सामने नहीं आता है, और जब भी सामने आता है तो क्लियर पिक्चर में सामने नहीं आता है, मतलब कुछ ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म्स में सामने आता है, जैसे ड्रीम्स की फॉर्म में, या फिर फ्रॉइडियन स्लिप ऑफ टंग एक जो फ्रॉइड ने दिया था, उन सिंबल्स की फॉर्म में ये बाहर आता है हमारे। वो कैसे आता है? For example, I was about to say something, but I ended up saying something else. मुझे कुछ बोलना था, मैं बोलना था father, लेकिन I ended up saying fraud. Okay? या फिर मैंने फ्रॉइड बोलना था और मैंने फ्रॉड बोल दिया। So what is that? ये slip of tongue है, ये मेरा unconscious symbolic form में बाहर आया है।
हम सबके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ और बोल देते हैं. So what according to Freud was that it was our unconscious mind that is working beneath the surface of consciousness. Okay. So ये फ्रॉइडियन स्लिप बोलते हैं इसको, जब आप कुछ और कहना चाहते हो और कुछ और कह देते हो. ठीक है. So then this was all about Freud के 3 levels of personality or mind. Then Freud talked about structure of personality. Initially Freud ने conscious, pre-conscious, unconscious की बात की थी, but later on Freud ने इस notion को revise किया and he introduced 3 basic structures in the anatomy of personality. So वो कौन से structure थे? id, ego and superego, 3 structures थे. ठीक है. और Freud ने कहा कि इंटरैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट होती है जब इन 3 कंपोनेंट्स के बीच में, तो हमारी पर्सनालिटी बनती है. जिस इंसान की जिंदगी में इड ज्यादा डोमिनेंट है, जिस इंसान की जिंदगी में ईगो ज्यादा डोमिनेंट है या सुपर ईगो ज्यादा डोमिनेंट है, उन तीनों लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग तरह की होगी. सो इन्हीं तीनों फोर्सेस की इंटरैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारी पर्सनालिटी को बनाती है. सो this is a description of pictorial description of Freud's id, ego and superego. ये हमारे दिमाग में ये तीनों चीजें चल रही हैं. So इसको अगर आप simply समझेंगे, id is what? Id is like I want to do it right now, without thinking anything, without finding the reason why I want to do it, or without thinking for the resources की either I can do it or not. If I'll say no, I just want to do it right now, अभी के अभी करना है, then मेरी id काम कर रही है, my id is working. अगर मैं बोलूं कि I need to do this thing, but for that I need some planning, I need to find out the resources कि मेरे पास हैं ये करने के लिए या नहीं, और I am able to do it or not, या if I am not able to do it, how can I do it with the help of someone else or anything. तो उस टाइम पे मेरी ईगो काम कर रही है. जब आप रीजन देने लग जाते हो तो ईगो काम करती है. एंड व्हेन इट इज लाइक यू कांट हैव इट, इट्स नॉट राइट. जब आपके मॉरल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई से आई वांट टू स्मोक, और यहाँ पर अगर मेरी मोरालिटी काम कर रही है कि नो आई कैन नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू माई मॉरल कंडक्ट, तो उस टाइम पे मेरा सुपर ईगो काम कर रहा है. आई एम गोइंग टू डिफाइन इट इन नेक्स्ट स्लाइड. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हाँ जी. इन मिडल, बट एक्चुअली 40 मिनट्स होने वाले हैं तो मीटिंग एंड हो जाएगी. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सबके साथ प्लीज रिजॉइन कर लें. आई कैन नॉट हियर यू, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. मैम आई मैसेज्ड यू, काइंडली सी दैट. कैन यू प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स? I already messaged you, ma'am, personally. Wait. I'm just not able to hear it. Can you please write it? Ma'am, can you please wait? I will do it. Kindly rejoin again, friends. It's because 40 minutes खत्म होने वाले हैं. I think 2 या 3 हैं. Yeah, thank you. Yeah. 5 minutes on it. So you are saying in I am seeing the time कि 3 मिनट में ये खत्म हो जाएगा ये session, and yes, then we have to rejoin. Yes, ma'am. Yes. Actually, meeting is going to be end in 4 or 3 minutes. Okay. So I think we should continue after the break because ये id-ego फिर वो आधा रह जाएगा. Yes. So okay, so just end this session. Yes, ma'am. And we will rejoin it. Okay. Yes, ma'am. Sure. Okay. Anjali, ma'am, kindly end the session. Okay, ma'am.